Hello, Shinu. Hello, Shinu, how are you? I'm doing good. Shinu, how's life in Norway? It's going good. It's going. Um, the summers are here. The midnight sun is here. So we have long days and more light. So yeah, it's pretty good. I mean, तो शीनू आज हाइक करने जा रहे हैं, ठीक है? yeah. टोटल हाइक है 7 किलोमीटर की, ठीक है? हाँ. शीनू हाइक भी कर लेते हैं और जो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स इंडिया में उनके लिए एक प्यारी सी वीडियो बना लेते हैं, ठीक है? That's तो शीनू मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि शीनू आपको नॉर्वे क्यों मूव होना चाहिए? आपको नॉर्वे में क्या अच्छा, मतलब आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं नॉर्वे मूव होने के? तो कुछ पॉइंट्स पहले यहाँ पे बता दो। हाँ, वैसे हमने इस बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाए, बट लेट्स मेक इट फॉर द न्यू व्यूअर्स. हाँ, Why you have to move to Norway? Of course, if you want a work balance life and time for yourself, like slow life, but at the same time nice work culture, balanced life. So I think Scandinavia and Norway is great for you. If you like peaceful life, if you like slow mornings, if you like balanced work culture. So because work balance life is the main priority in Norway. In Scandinavia, nobody overwork here. Everyone works for specific hours, and after that, the weekend is off. Nobody likes to work on the weekends. Nobody works after 4. So it's great to be here if you like perfect balanced life. तो शीनू एक काम करते हैं, हाइक स्टार्ट करते हैं और मेरे बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है? Okay. ओके शीनू, लेट्स गो। यस दोस्तों, और हम जा रहे हैं, आज बहुत ही प्यारा दिन है एंड लेट्स गो। हेलो दोस्तों, और दोस्तों शीनू सामने से आ रही है, ठीक है? और मैं शीनू का वेट कर रहा हूँ, ठीक है? और अभी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक हम यहाँ जा सकते हैं और एक हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक है? बट दोस्तों मेरा गोल है ये वाला रास्ता, क्योंकि दोस्तों आज मेरे को एंड करना है एक बहुत ही प्यारी लेक पे, ठीक है? और दोस्तों इसमें हमारा सैलड है, ठीक है? और शीनू भी ऑलमोस्ट आई गई और बस मैं शीनू का वेट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों हाइकिंग में आपको पानी वगैरह खूब कैरी करना है एंड नाउ लेट्स गो दोस्तों, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, और दोस्तों मैं शीनू हाइक कर रहे थे और हम थोड़ा बीच में रुके। शीनू आगे से ना शीना। और दोस्तों ये कपल था दोस्तों, इनको भी बहुत गर्मी लग रही है और दोस्तों ठीक है, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है? वी वॉन्ट गिव अप। और दोस्तों हर जगह यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर नेचर है, ठीक है? लेट्स गो। हाय शीनू, Hi. वेलकम बैक। Yes. शीनू अगले 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो कि नॉर्वे में क्यों आपको रहना चाहिए। पहली बात तो अगर जॉब मिल जाए, if you get the job in Norway, for example, you're somewhere on the planet and Norway invites you for a job or gives you like a opportunity for the interview, and then you got selected and hired by Norway. So it's like a win-win situation. And if your husband is earning and so does you, if you both are like have a permanent job or at least a contract job, and if you both are earning, then I think life is pretty good. In terms of money, to be honest, you can save बिग हाउस, big house, बिग कार, big car, not just like you can get a nice car, and at the same time you can spend a lot of time on traveling. So I think that's a very good point. If you, especially the people who work in IT, or maybe both husband and wife work in a like a research or in a company, so I think, but the main hurdle is like getting a job. So if you get it, I think it's good for you, and I think you should move to Norway then. ओके। But if you don't have any job, like a year of contract in a semi-skilled job, I think then might be it is a bit tougher for you. शीनू एक बार वो एक्सप्लेन कर दो, पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव वाला शीना, एक बार वो बता दो। हाँ, क्योंकि Yeah, हाँ, I think Europe is known for like its best paternal leave. But let's talk about Scandinavia, like Denmark, Sweden, and Norway, and especially Norway. So I think Norway gives like a 1 year of paternal leave, in which mother gets like a paid 6-month paternal leave, and then father gets it. And if you want it, then you can also extend it. But then I think some money got deducted from your salary. It's dependent on like 80%, 70%. Yeah. But for a year, you both get paid holidays, 6 months, 6 months. So I think that's the best benefit in Scandinavia. गुड। Yeah. शीना, आर यू एंजॉयिंग द हाइक? Yeah, it's super hot after so long, But Sheena, that's what we want, right? and it's like so hot for me, but I'm enjoying. Yes, Shinu, let's go. Yay, that's our hiking route now. Let's go.
हेलो दोस्तों। और दोस्तों ये देखो हम एक बंदा मिल गया है साइकिलिंग करते हुए। और दोस्तों नॉर्वे की बात है दोस्तों, यहाँ पे ना हेलो बोलते हैं, हेलो हाई करना होता है। जब आप हाई करते हो ना, सो यू हैव टू से हेलो हाय, हाय सन, हाय हाय, हेलो हाय सन। हेलो दोस्तों मैं अर्जुन थोड़े से यहाँ पे लॉस्ट हो गए थे, पर दोस्तों ये जो पेड़ों पे साइन होते हैं ना, ये डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं इधर लेक की तरफ, ठीक है। शिनू क्या हुआ? शिनू गिरना मत बेटू। दोस्तों शिनू भी आ रही है, ठीक है। और दोस्तों शिनू भी आ रही है। दोस्तों शिनू ना वैसे हाइक कर लेती है। शिनू को स्टार्टिंग में डर लगता था, और अब शिनू ना प्रॉपर मेरे को टक्कर देती है। और शिनू भी अच्छे अच्छे रास्तों पे चली जाती है, ख़तरनाक वाले रास्तों पे। और दोस्तों जो पेड़ों पे निशान होते हैं, ठीक है, वो आपको देखने होते हैं, ठीक है, ये वाले। सो दोस्तों लेट्स गो शिनू। शिनू नो, लेट्स कम शिनू, डोंट गिव अप। हेलो दोस्तों। और दोस्तों हम ना एकदम पहाड़ पे आ चुके हैं। दोस्तों बस शिनू भी पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। और दोस्तों सबसे बेस्ट बात यह है कि जो मेरा टारगेट था ना लेक का, दोस्तों हम उस लेक पे ना पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो इन पहाड़ों के पीछे नीचे ना लेक है, और बस हम उसी की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है दोस्तों। और मैंने तो अपना सैलड खा भी लिया, क्योंकि दोस्तों टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना चक्कर आ रहा था, ठीक है। तो मैंने अपना सैलड खा भी लिया, और अभी शिनू अपना सैलड खाइए आराम से लेक के पास बैठ के। और दोस्तों हम लोग लेक के पास पहुंचने वाले हैं। वाओ दोस्तों, सुपर एक्साइटिंग, लेट्स गो शिनू। हेलो दोस्तों लेक तो बहुत सुंदर है, ठीक है। बट एक्चुअली दोस्तों मुझे लगा था मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच टाइप होगा ना, वहाँ पे नहा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे को ना प्रॉपर स्विमिंग नहीं आती है, ठीक है। सो आई कांट स्विम हेयर एक्चुअली। थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि 5 किलोमीटर हाइक करके आए, और लोग वहाँ पे फ़िशिंग भी कर रहे हैं एक्चुअली, ये देखो। और दोस्तों लेक तो वैसे बहुत प्यारी है टू बी ऑनेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यार हम लोग यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। स्पेशली मैं तो नहीं कर पाऊँगा। शिनू तो नहीं करती स्विमिंग वैसे, बट दोस्तों लेट्स गो। हेलो दोस्तों हमें यहाँ पे ना 2 नॉर्वेजियन मिल गए थे, हमने इनसे बात किया, ठीक है। और दोस्तों उधर तो 15 किलोमीटर है, तो हम लोग वो चीज़ तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने एंड पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है। हमें इस लेक तक आना था, और अब शिनू अपना लंच कर लो, ठीक है। हाँ शिनू अपना लंच करेगी। और दोस्तों बहुत ही प्यारा व्यू है, ठीक है। और वहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, और दोस्तों अच्छा ब्यूटीफुल व्यू। और दोस्तों नाउ लेट्स गो। अभी शिनू खाना खाएगी, फिर हमें करना है 5 किलोमीटर और हाइक दोस्तों, ठीक है। थैंक गॉड यहाँ पे बोर्ड्स लगे हैं, ठीक है। एंड दोस्तों लेट्स गो। टेंशन हो रही है। हेलो दोस्तों। और दोस्तों ये देखो दोस्तों, आज हमारा दोस्तों ये खाना था, ठीक है। शिनू एक बार अपना मील दिखा दो शिना, ये हमारा मील था, ठीक है। शिनू अपनी मील खा रही है, ठीक है। मैंने अपनी मील खा ली है दोस्तों। थैंक गॉड हम ये सैलड पैक करा के लाए थे, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोगों ने किया है 6 किलोमीटर्स, और अभी 5.5-6 किलोमीटर बाकी और है, ठीक है। और दोस्तों अभी बहुत दूर जाना है, वापस घर जाना है, ठीक है। और हाँ शिनू यहाँ पे एक टेबल तो बनता था, हाँ। और दोस्तों वो वाला व्यू वैसे बहुत प्यारा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमारी हाइक ख़त्म होती है, ठीक है। एंड अभी दोस्तों बहुत दूर की जर्नी है, और हमारे पास पानी थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो आई होप हम अच्छे से सर्वाइव कर जाए, लेट्स सी। हेलो शिनू। हेलो। शिनू कैसी रही फिर 6 किलोमीटर की अभी तक हाइक? आई एम लिटिल टायर्ड बिकॉज आज बहुत धूप है, और हमें यूजुअली इतनी धूप की आदत नहीं है, क्योंकि पूरे साल में धूप होती नहीं है। तो मेरे को ना सर में थोड़ी सी दर्द हो रही है, बट आई हैड माई इलेक्ट्रोलाइट लिटिल बिट, तो हो सकता है उसको पीने के बाद ठीक हो जाए। बट इट वॉज अ नाइस ट्रेल एंड ब्यूटिफुल वेयर वी एंड अप. It's nice to see the beautiful lake. We, unlocked the new lake Yes. today on this hike. Cool. And of course hike is all about pushing your boundaries. जितना भी चला जाता है उतना कर लो, but we did it till the end. So Okay. I just wanted to go back because it's a long way to go back now. Shiनू 6 kilometers more. And More than 6 actually. I'm already tired to be honest, but I'll do it. Shiनू we will survive. Shiनू last question. So Shiनू, would you recommend to people to come to Norway for a jobs? Of course, जो हमारा they main theme should- था. They should apply. They should see if the companies or like the industry or like the people are, like the management is replying them back. If they are replying them back, go for an interview, try to crack it and try to get a job. It's nice here. If you, as I told you earlier, that if you like perfect balanced life, if you like nature, if you're a bit introvert, if you like solitude, then I think it's one of the best place to live. But if you are more social, more need people around you, then I think it's not the right place for you. So it's depend upon
every individual. So Shinu, let's end the vlog here and say bye to my subscribers. Goodbye. I hope you also having a great weekend, and let's go back home. It's a long way back. Bye Shinu. Bye.